जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट योगा कहाँ कबीरा एक काले कोथा गेला गौर नटराज पाषाणे कुटिबो माथा आनाले पाशिबो गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जय कोयलो विलास से संगा न पाइया कांदे न रोता मोदास जे अनिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज एकादशी है, महान संग भाव है। वो एकादशी को हम परिणाम करते really was three things. Briefly, briefly, Lila Mita. Shloka Bhagavatam about three things. Okay. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. गोपी जाना वाला भा शिवरधारी. जोर से. गोपी जाना वाला भा शिवरधारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. जय राधा माधवा कुंज बिहारी. सोदानंदन ब्रज जन रंजन. सोदानंदन ब्रज जन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधवा जय बिहारी. जय राधा माधवा जय बिहारी. गोपी जाना वाला भा वरधारी.
गोपी जाना वाला वरधारी सोदानंदन ब्रज जना सोदानंदन ब्रज जना रंजना यमुना तीरा नचारे जय राधा माधव बिहारी गोपी जाना वाला वरधारी सोदानंदन ब्रज जना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha Pasadi Radha Pasadi Radhe. Haribo, 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 Haribo.
Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन श्रील अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णु डिवाइन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णु डिवाइन श्री गौर किशोरदास बाबू जी महाराज जी की जय ओम विष्णु डिवाइन श्री सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद जी की श्री श्री गौर निताई की श्री श्री राधा पाद साधी ललिता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की Samkirtan Yagya ki, book distribution marathon ki, all glory to all glory to all glory to all glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Chaitanya Manobhestam Savitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Radhiswam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalan Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvetam Savadhutam Varijana Saitam Krishnam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanda Radha Kanda Namastu Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sudi Devi Pranamami Harime Vancha Kalpatar Sidhu Bhayevacha Jai Shri Krishna. हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो जैसे आप जानते हो आज एक महान संत का तिरुभाव है जिनका नाम है और एकादशी के दिन आपके मंदिर में लीलामृता भी पढ़ते हैं तो थोड़ा लीलामृत भी पढ़ेंगे और क्योंकि मैराथन का समय है तो भागवतम के श्लोक भी पढ़ेंगे जिसमें प्रचार की सेवा पर पापा जी बल देते हैं। पहले हम गौर किशोरदास बाबू जी का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। नमो गौर किशोराया साक्षात् वैराग्य मूर्ते विपुलंबर रसंबोधे पदम बुझायते नमः। About your lotus feet, the Gaur Kishodas Babaji, the embodiment of renunciation and the ocean of sacred rapture in separation. आविर्भाव और तिरुभाव। आविर्भाव का अर्थ है जब को कोई महान संत प्रकट होता है और तिरुभाव का अर्थ है जो वो प्रकट होता है। भौतिक समाज में बर्थडे या आविर्भाव तो हम मनाते हैं
और तिरोभाव बहुत कम लोग मनाते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में हम तिरोभाव भी मनाते हैं, क्योंकि हमें मौका मिलता है इस महान संत के गुणों के विषय में स्मरण करने के लिए। और गौर किशोरदास बाबू जी बड़े महान संत थे वैसे तो देखा जाए, क्योंकि वो हाँ भागवत भक्ति सिद्धांत जी के गुरु थे, इसलिए हम उनके विषय में ज़्यादा ज्ञान का ज़्यादा महत्व देते हैं। गौर किशोरदास बाबू जी का जन्म हुआ था एक वैश्य खानदान में, और पहले वो कोई सारा बिजनेस धंधा करते थे, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। और उनके पत्नी के देहांत के पश्चात वृंदावन में गए, जहाँ की उन्होंने 30 साल भजन किया। गौर किशोरदास बाबू जी बहुत ही ऊंची कोटि के संत थे, जिनके मन में सदा एक ही भाव था, हरि नाम का उच्चारण। तो 30 साल के लिए उन्होंने दिन रात 30 साल के लिए भजन किया वृंदावन में। और वहाँ रोज 128 माला करते थे। तो और एकादशी के दिन पूरा निर्जल, एक बूंद पानी हुई थी। गौर किशोरदास बाबू जी वृंदावन में थे और बिल्कुल सादा जीवन, कहने के लिए क्या, जो कपड़े शमशान घाट में फेंकते हैं जब शरीर को जलाते हैं, जाकर वो कपड़ा गंगा में धोकर वो पहन देते हैं। और खाने के लिए बहुत ही सादी खुराक, मिट्टी गंगा की और चावल गंगा जल में भगोते थे, बिल्कुल सादा जीवन। तो उन्होंने 30 साल के लिए यहाँ भजन किया और फिर भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी और वो गए कहाँ, नवद्वीप धाम में, जहाँ की उस समय ठाकुर भक्ति विनोद जी प्रचार कर रहे थे। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उस समय ये स्थापित किया था कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि कौन सी है। और फिर वो गए नवद्वीप। नवद्वीप में भी बहुत ही सारा जीवन बिताते थे और भौतिक कार्यों में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। उनकी इच्छा रहती थी कि हरि नाम किया जाए और हरि नाम का जाप करते समय कोई आकर उनको डिस्टर्ब नहीं करे। जितने ध्यान से हम हरि नाम करेंगे उतना अधिक लाभ भी हमें पहुंचेगा। तो गौर किशोरदास बाबू जी काफी समय के लिए गए, एक पब्लिक लैट्रिन, वहां जाप करने लगे। आप कहोगे क्यों? कि पब्लिक लैट्रिन के वहां बदबू आती है, अक्सर कोई जाता नहीं। और उनका यह भाव था, पब्लिक लैट्रिन की बदबू भौतिक की संगत में लेने से ज़्यादा बेहतर है। कईयों ने उन्हें कहा कि हम आपके लिए भजन कुटीर बना देते हैं, पर गौर किशोरदास बाबू ने कहा नहीं, भजन कुटीर नहीं चाहिए और
पब्लिक लैट्रिन में जहाँ की बदबू आती है वहाँ जाकर जाप करते थे। और किशोरदास बाबू जी का संबंध भक्ति विनोद ठाकुर से हुआ और जगन्नाथ बाबू जी से। रहते थे खाने के लिए मधुकरी, ये था उनका, और पहनने के लिए जैसे मैंने कहा बिल्कुल सादे कपड़े जो लोग फेंक देते हैं उसे उठाकर धोकर पहनते थे। गौर किशोरदास बाबू जी भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अनपढ़ थे, नाम लिखना भी नहीं जानते थे और बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे। जब भी उनका इतना गहरा ज्ञान था कि बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते थे शास्त्रों का प्रश्न लेकर, और पूरे समाज में उनका बहुत आदर था। गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद जी के साथ बैठकर भजन करते थे और उन्हें अपना शिक्षक गुरु के समान मानते थे। ठाकुर भक्ति महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी की शुद्ध शिक्षा की स्थापना की। महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात महाप्रभु का सिद्धांत गलत व्यक्तियों के हाथ में आ गया था। ये ठाकुर भक्ति विनोद जी की महिमा थी कि उन्होंने असली संदेश को स्थापित किया। अनेक ग्रंथों द्वारा शुद्ध भक्ति के ज्ञान की रचना की और उनकी प्रार्थना थी भगवान से कि वो कोई प्रतिनिधि को भेजें जो कि उनके आंदोलन को आगे बढ़ा सके। और उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने किसे भेजा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिसे रे ऑफ विष्णु की किरण माना जाता है। भक्ति सिद्धांत जी शुरू से ही बहुत बड़े विद्वान थे। 7 साल की आयु में उन्होंने पूरे गीता को कंठस्थ कर लिया था। He was walking encyclopedia। अब उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते थे किसी भी समय। तो गौर किशोरदास बाबू जी बड़े विद्वान थे और लाइब्रेरी में भक्ति सिद्धांत जी सारी किताब पढ़ लेते थे। वो छोटी आयु में ही लाइब्रेरी में सारी किताबें उन्हें पढ़ ली। एक बार पढ़ लें तो कभी भूलते नहीं थे, मुझे बिल्कुल याद रहता था। और फोटोग्राफिक मेमोरी। और भक्ति सिद्धांत जी की कुछ शिक्षा तो उनके पिता ने दी थी, आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने अपने पिता से प्राप्त किया था। पर भक्ति सिद्धांत जी जब दीक्षा का समय आया तो उन्होंने क्या कहा? गौर किशोरदास बाबू जी के पास जाने के लिए कहा। और जब पहली बार भक्ति सिद्धांत जी आए गौर किशोरदास बाबू जी के पास, तो गौर किशोरदास बाबू जी ने कहा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें दीक्षा दे सकता हूँ? पर भक्ति सिद्धांत जी ने विनती की और गौर किशोर बाबू ने कहा, ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछूंगा तो मैं दीक्षा देनी चाहिए। फिर भक्ति सिद्धांत जी फिर गए
और अगली बार उन्होंने कहा, मैं पूछना भूल गया, क्योंकि गौर किशोरदास बाबू जी ने दिन रात भजन करते थे 128 माला दिन में, पर शिष्य बनाने की कोई इच्छा नहीं थी उनकी। वो चाहते थे एकांत के स्थान में बैठकर जप करना। दूसरी बार जब गए भक्ति सिद्धांत जी, उन्होंने फिर से पूछा, मैं भूल गया। जब उन्होंने अपने पिता ठाकुर भक्तिनाथ से कहा कि अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मुझे शिष्य बनाना है, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, तुम घर मत आना जब तक वो तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करे। तो भक्ति सिद्धांत जी उन्हें मिले एक ब्रिज के ऊपर गंगा के। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि अगर तुम मुझे दीक्षा नहीं दोगे तो मैं यहाँ आत्महत्या करूँगा। फिर जब गौर किशोरदास बाबू जी ने देखा कि इसमें इतनी गहरी इच्छा है, फिर उन्होंने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कई भक्तों ने, कई गौड़ीय मत सन्यासियों का कहना है कि गौर किशोरदास बाबू जी के पास भक्ति सिद्धांत जी 18 दफे आए थे और 18 दफे उन्होंने इनकार किया। नहीं, 18वीं बार जाकर उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। वो कई कहते हैं 3 या 4, पर कई बार उन्हें जाना पड़ा। गौर किशोरदास बाबू जी कहते थे कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं अपना नाम ही लिख नहीं सकता, तुम इतने बड़े विद्वान हो, मैं कैसे तुम्हें लिख सकता। तो गौर किशोरदास बाबू जी धाम में रहते थे और हर धामवासी को आदर देते थे, चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई पशु हो, उसे धामवासी मानते थे। आप ये पढ़ते हो जगन्नाथ बाबू जी के दूधों में भी। तो गौर किशोरदास बाबू जी धाम के हर व्यक्ति को आदर देते थे, और में जो त्याग की भावना थी और आकर्षण राधा रानी की सेवा के प्रति, इसकी तुलना की गई है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। और गौर किशोरदास बाबू जी कहते थे, भजन निताई की कृपा से महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी और महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और वो कहते थे, अगर कोई व्यक्ति केवल भोजन खाना चाहता है, मतलब कि उसको बड़ा स्वाद है, पकौड़े भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो कहते थे फिर तुम भजन नहीं कर पाओगे। अगर भजन करना है तो सादा जीवन, अगर तुम चस्के के लिए खाना चाहते हो फिर भजन करना कठिन है। जो आपके फीस स्पॉन्सर करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि चस्के के लिए नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक हो पेट भरने में। और गौर किशोरदास बाबू जी बिल्कुल त्यागी थे और एक समय एक धनी व्यक्ति आया जिसने कहा कि मैं चैरिटेबल दवा खाना खोलना चाहता हूँ, जैसे आजकल रिवाज है चैरिटेबल दवा खाना खोला। उन्होंने कहा, इसका क्या फायदा अगर तुम उसका इलाज करके वो इंडिया तिब्बती में जुड़ेगा, क्या फायदा।
मान लो हमने किसी की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया, तो अगर वो आंखों द्वारा गंदी चीजें देखेगा तो क्या करेगा? गौर किशोरदास बाबा जी बहुत ही त्यागी थे। एक समय वो थोड़ी देर बाद उनकी आंखें बिल्कुल कमजोर हो गई थी, लगभग अंधे बन गए थे। और भक्ति सिद्धानंद जी ने कहा चलो क्या करा, आपका इलाज करा देते, हमारे बोल रहे थे। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा धाम के बाहर मैंने नहीं जाना। तो हर धामवासी को वो आदत देते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। हालांकि भक्ति सिद्धानंद जी इतने बड़े विद्वान थे, गौर किशोरदास बाबा जी अनपढ़ थे। जब भी उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी को भक्तिविनोद ठाकुर के कहने पर गुरु के रूप में स्वीकार किया। और गौर किशोरदास बाबा जी सबको यही कहते थे, अगर तुम्हें भगवत प्रेम चाहिए तो क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप, उसे हम दिन रात जाप करते थे। हालांकि वो अनपढ़ थे, उनके पास पूरा शास्त्र ज्ञान था। रहते थे मधुकरी करके, पहनने के लिए वो कपड़े लोग फेंक देते हैं, शमशान घाट से लाते थे कपड़े जो फेंके जाते हैं, बिल्कुल सारा जगह। और भक्तिविनोद ठाकुर बड़े प्रभावित थे उनके त्याग की भावना से, हरिनाम की रुचि में। और इसलिए उन्होंने अपने बेटे को आदेश दिया उनसे दीक्षा लेने के लिए। और भक्ति गौर किशोर बाबा जी के एक ही शिष्य थे, वो थे भक्ति सिद्धानंद ठाकुर। तो गौर किशोर बाबा जी ने कहा था जब वो शरीर त्यागे तो उनकी शरीर को धूल में खींचना चाहिए। तो गौर किशोर बाबा जी जब प्रकट हुए तो कईयों ने प्रयास किया ये बताने के लिए, कईयों का प्रयास था कि गौर किशोरदास बाबा जी की समाधि वो बनाएं, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध संत थे, दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन लेने के लिए। और सोच रहे थे हम मंदिर बनाएंगे तो फिर लोग आएंगे, चढ़ावा आएगा, हम धनी बनेंगे। तो भक्ति सिद्धानंद जी ने जब देखा तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने सबको रोक दिया कि किसी प्रकार से इस समाधि में सहयोग नहीं दें। भक्ति सिद्धानंद जी ने कहा कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र बिल्कुल ठीक है या जिसने कोई गलत काम नहीं किया हो पिछले 1 महीने में। तो भक्ति सिद्धानंद जी ने फिर गौर किशोरदास बाबा जी का क्या समाधि बनाई। तो गौर किशोरदास बाबा जी बहुत ही ऊंचे कोटि के संत थे, और आज है उनका सीधा भाव नहीं बढ़ा। हम भक्तों को उनसे प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें भी क्या उसी प्रकार का भाव हो, सारा जीवन ऊंचा विचार। हम ये तो नहीं कहते कि आप उनकी नकल करो, फटे हुए कपड़े पहनो, शमशान घाट जाओ, वहाँ जो कपड़े बस खुदा के धोती बनाओ। हम ये खाने के लिए चावल जो गंगा जल में धोते थे, या राधा कुंड की मिट्टी और गंगा की मिट्टी नहीं,
पर उनका जो भाव था वो क्या था? दिन रात हरि का नाम लेना। और उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी के द्वारा सारे विश्व में प्रचार किया। तो वो शिक्षा शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर के। और आज है उनका तिरुभाव दिवस। हम भक्ति विनोद गौरकिशोर बाबू जी से प्रार्थना करते हैं क्या कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम भी हरिनाम में रुचि बढ़ाएं और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें। और हमारा प्रयास रहना चाहिए सारा जीवन ऊंचा विचार, सारा जीवन का भाव होना चाहिए। गौरकिशोर बाबू जी की। आज हम थोड़ा लीला मीला भी पढ़ेंगे, एकादशी को लीला मीला भी पढ़ते। किधर पढ़ रहे हो? मुझे कहा गया था इधर से, इसका निशाना क्या है? हाँ, इधर से है ना, लीला मीला। यहाँ से मुझे बोला गया था। लीला में every एकादशी when they talk about book distribution. ठीक है। तो जैसे आप जानते हो हर साल हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या करने के लिए। तो एक भगवतम का श्लोक पढ़ेंगे तात्पर्य के साथ, फिर उस श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये बोर्ड में लिखा है जयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा अविन्द्यपा शान्त्या च तुष्यात् यशो विनादना दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रियपा शान्त्या च तुष्यात् यशो जनार्दन। शब्द दया दिखाने से सर्वभूतेषु समस्त जीवों पर संतुष्टिया संतुष्ट होने से येन केन वा किसी न किसी तरह सर्व इंद्रिय समस्त इंद्रियां उपशांत्या वश में करके च भी तुष्यति संतुष्ट होता है। आशु तुरंत जनार्दन समस्त जीवों के स्वामी। अनुवाद मेरे पीछे बोले। समस्त जीवों पर दया करने से येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा
इंद्रियों को बस में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु तो समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावन अमृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपितुल्यार्थदर्शिनः। भागवत 6:17-28। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है, किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां बस में रखनी होती हैं। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। तो इस श्लोक में नारद मुनि, इस श्लोक उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं। नारद मुनि प्रत्येक रस को शिक्षा दे रहे हैं। तो नारद मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान को अगर हम संतुष्ट करना चाहें तो इन कार्यों के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। और जिसमें सबसे पहले क्या है? दया की भावना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं दया की भावना का मतलब है प्रयास करना कृष्ण भक्ति के संदेश को आगे पहुंचाने के लिए। ये भाव, ये संदेश कई श्लोकों में प्राप्त होता है। जैसे कि तीसरे स्कंद में भक्तों के गुणों का वर्णन है और भगवान कपिलदेव कहते हैं प्रतीक्षा करुणी कहा सुविधा सर्वदयिना अजत सर्वसंता साधव साधव पूछना। जो भक्त है जिसमें करुणा दया की भावना होगी। तो ये प्रचार की सेवा, इस विषय पर आप कई बार सुन बैठे हो। भगवान प्रचार की सेवा पर बल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा है क्या? सारे जीवात्मा भौतिक संसार से मुक्त होकर उनके धाम में लौटे। चैतन्य महाप्रभु एक समय हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे और महाप्रभु ने कहा, हरिदास ये बताओ ये सब यावनों की का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान की इच्छा क्या है? सारे जीवात्मा उनकी शरण ग्रहण करें और भगवान के धाम आए। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं 3 कार्य आवश्यक आया, फिर संतुष्ट और सर्वनिधि पर संतुष्ट रहो हर स्थिति में और मन और इंद्रियों को वश करो। तो दया की भावना प्रकट होती है जब हम प्रचार की सेवा करते हैं
और वैष्णव के विषय में क्या कहा जा रहा है? बड़ा दुख दुखी जो वैष्णव भक्त है, जब वो देखता है कि लोग भौतिक कार्यों द्वारा संतुष्ट होना चाहते हैं, वो जानता है कि ये संभव नहीं है, तो क्या करता है? प्रयास करता है कि भगवान का संदेश आगे पहुंचाया जाए। तो आप शास्त्र में ये ज्ञान प्राप्त करते हो। ये जो प्रचार की सेवा जिसके विषय में आप सुनते हो दिन रात, इस सेवा पर बदल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये है भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा है क्या? कि सब जीव उनकी शरण में आए। और असली दया, नकली दया अर्थ है, नकली दया का क्या साधन? भौतिक सुविधाएं देना। जैसे कई बार व्यक्ति हमें दोष देते हैं, तुम लोग प्रचार करते हो हॉस्पिटल खोलो, ये करो, ये करो। ये है भौतिक दया। इस भौतिक दया से असली सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर आप असली सुख देना चाहते हो तो क्या है? ये दिव्य ज्ञान दीजिए। प्रभुपाद जी ने अनेक श्लोकों में और तात्पर्य में इस विषय पर बल दिया है कि असली दया है भगवान के संदेश का प्रचार। ठाकुर भक्ति विनोद जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले महान संत थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर। ठाकुर भक्ति विनोद को पूरा विश्वास था कि महाप्रभु की भविष्यवाणी सफल होगी। क्या थी महाप्रभु की भविष्यवाणी? पृथ्वी भक्ति सिद्धांत जी ने कई सन्यासियों को भेजा था विदेश में प्रचार आरंभ करने के लिए, इस भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए, पर वो सफलता प्राप्त नहीं कर सके। और जब वो प्रभुपाद जी को मिले तो उन्हें पूरा विश्वास था कि ये युवक कर पाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना ग्रंथ विश्व के अनेक महाविद्यालयों में भेजा और उससे पहले ग्रंथों का प्रकाशन होता नहीं था क्योंकि कोई प्रिंटिंग इंडस्ट्री नहीं थी, कागज नहीं थी, कागज नहीं था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना की और प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया, उन्होंने इस प्रचार की भावना को प्रकट किया ग्रंथों के प्रकाशन के द्वारा। और उन्होंने इस विषय पर बल दिया कि ग्रंथों को बांटना चाहिए, दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद को क्या आदेश दिया? अगर भगवान तुम्हें सफलता दें तो क्या करो? ग्रंथों को बांटो। तो ये जो प्रचार की सेवा है जिसके विषय में आप लगभग रोज ही सुनते हो इसकी महिमा, इसलिए सुनोगे बार बार वो भावना भी होगी। और जैसे आज के श्लोक में नारद मुनि प्रचार की सेवा पर बल दे रहे हैं। भागवतम के 30 स्कंद के श्लोक में कपिल देव भगवान कह रहे हैं कि भक्त जो है उसमें दया की भावना होनी चाहिए। आप कहोगे या सोच सकते हो कि हमारे में तो ये भाव है ही नहीं, सच बोलते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग नरक में जा रहे हैं, जाने दो, हमारा तो उद्धार हुआ है। पर भावना बेशक नहीं हो, पर अगर हमारे में श्रद्धा है, भाव है कि हमने महान आचार्यों के संदेश का पालन करना है। पर भगवान का भी यही संदेश है
भगवान की भी यही इच्छा है। गीता तक में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, मेरा प्रचार करता है। तो ये प्रचार की सेवा जो कि ग्रंथों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी ने क्यों अनेक ग्रंथ लिखे, क्योंकि गुरु महाराज ने उन्हें ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो क्या करना, ग्रंथों का प्रकाशन और ग्रंथों का अनुवाद। तो प्रभुपाद जी ने इस आदेश को बड़ी गंभीरता से स्वीकार किया। जैसे आप जानते हो, जब प्रभुपाद राधा दामोदर में रहते थे, उनके पास एक पुराना टाइपराइटर था, टूटा हुआ, उसमें टाइप करके मैन्युस्क्रिप्ट को फिर दिल्ली आते थे और प्रकाशन करके इन्हें बांटने जाते थे। क्यों? एक ही भाव था, लोग पढ़ेंगे इन ग्रंथों को तो जीवन को सुधारेंगे। कई बार हमारे मन में ये भाव आता है कि लोगों की रुचि नहीं है इन ग्रंथों में, कोई पढ़ना नहीं चाहता, हम बेकार में इतना प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों की रुचि है, अगर रुचि नहीं होती तो लोग इन ग्रंथों को क्यों नहीं क्यों पढ़ते। तो सारे विश्व में ये देखा है कि जब लोग कई हैं जो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, और हमारा फर्ज क्या है, प्रयास करना। तो अगर हम प्रयास करेंगे इस संदेश को आगे पहुंचाने के लिए, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कई प्रिंटिंग प्रेस भी खोले थे, ये प्रचार के कार्य को बहुत बदल दिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश जाने से पहले ग्रंथों का अनुवाद शुरू कर दिया था। और जब प्रथम स्कंद 3 भागों में छपा, उसके पश्चात प्रभुपाद जब अमेरिका गए, उन्होंने भक्तों को क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। भक्त जो थे जरा विचलित हो गए, उन्होंने कहा कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को। अमेरिका में लगभग खास करके उस समय अधिक आबादी क्रिश्चियन है, और भक्तों ने कभी सपना में नहीं देखा था कि गीता, कृष्ण बुक इत्यादि वो सड़कों में बांटेंगे। तो जब प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों को बांटो, तो भक्त चिंता में थे कैसे प्रभुपाद जी को खुश करें। उनकी इच्छा थी उन्हें खुश करने की, पर उन्होंने प्रयास करके एक साधन निकला, फिर दूसरे साधन निकला। उदाहरण के लिए एक समय हमारे भक्त हरि नाम करके सैन फ्रांसिस्को में जा रहे थे वापस मंदिर, और रास्ते में पेट्रोल डालना पड़ा। पेट्रोल डालने के लिए रुके, और उसी समय कृष्णा बुक जापान से छप कर आई थी अमेरिका में। तो भक्त के पास 2-3 कॉपीज थी अपनी गाड़ी में, तो $10 का पेट्रोल लिया और $10 हो गई। और उसने जाके पेट्रोल पंप के मालिक को कहा, $1 की बजाय हम आपको एक किताब दे सकते हैं। उसने किताब को देखा, अमेरिकन था, ओके। तो भक्त ने सोचा कि एक व्यक्ति ऐसे खरीद सकता है तो दूसरे व्यक्ति को भी प्रचार करने पर हम आकर्षित कर सकते हैं। तो हंसते हंसते भक्त खोजते गए नए नए साधन, और ग्रंथों का वितरण बढ़ता गया। जब भारत में प्रभुपाद जी आए और प्रचार शुरू किया, भारत में भी भक्तों ने प्रयास किया
इन ग्रंथों को बांटने के लिए। तो इन ग्रंथों को इसलिए बांटा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान की वाणी और तात्पर्य में इसी वाणी की व्याख्या, और क्योंकि संतों की इच्छा रहती है सबको उद्धार हो, इसलिए हम प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं। प्रचार की सेवा सफल होती है जब हम प्रयास करें और अच्छी साधना भी रखें। अच्छी साधना बहुत आवश्यक है। एक मंत्र है इस्कॉन में, कई कहते हैं कि प्रभुपाद जी से मंत्र निकला है, पर प्रभुपाद जी से शायद नहीं निकला। प्रीचिंग द एसेंस। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं जो है, पर सबसे बेहतरपूर्ण कौन सी सेवा है? प्रचार की। बुक्स आर द बेसिस। प्रचार का मतलब है ग्रंथों के माध्यम से प्रचार करना। और क्यों? कि ग्रंथ में है भगवान की वाणी, जिसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं इत्यादि। और अगर हम ग्रंथों द्वारा प्रचार करेंगे तो लोग ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसके द्वारा आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होगी। प्रभुपाद जी कहते थे, तुम बोलोगे कुछ अपने जो जीभ से, जबानी, वो सुनेंगे और भूल जाएंगे। तो ये जो प्रचार की सेवा है, इसके द्वारा आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। प्रचार की सेवा अधिक प्रिय है क्योंकि इसके माध्यम के द्वारा हम लोगों की अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। अगर आज आप देखते हो कि भारत में या सारे विश्व में भक्तों की संख्या बढ़ी है, उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। इन ग्रंथों को पढ़ना भी है और पढ़ना भी है। तो ये है असली दया। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी पढ़ लेगा, एक शब्द ही पढ़ लेगा और अपनाएगा, उसका पालन करेगा, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। तो हर साल सारे विश्व में हमारे भक्त प्रयास करते हैं क्या? इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए। और ये अनुभव है कि गीता जयंती के उपलक्ष्य ये जो हम मैराथन करते हैं, इसमें सब रुचि लेते हैं। असल में ये मैराथन पहले शुरू हुआ था अमेरिका में, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था अमेरिका में और यूरोप में। और उन दिनों में पहले 3 दिन का मैराथन होता था, क्रिसमस मैराथन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर भक्तों ने देखा कि वो मैराथन करते हैं, बड़ा अच्छा नतीजा आता है। उन्होंने 3 दिन के मैराथन को 1 हफ्ते का मैराथन कर दिया। उन्होंने देखा 1 हफ्ते में भक्त जब अधिक प्रयास करते हैं, अच्छी सफलता होती है। तो फिर उसने 1 हफ्ते से 1 महीने को बढ़ा दिया। तो प्रभुपाद जी से पूछा गया था मैराथन का क्या अर्थ? और प्रभुपाद जी का मैराथन का अर्थ है कम सोना, कम खाना और अधिक प्रयास करना। तो खैर हम ये नहीं कह रहे कि आप खाना प्रसाद कम करो, पर मैराथन के समय हम प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। और अगर प्रयास करें तो सफलता भी होगी। आप पढ़ते हो चैतन्य भागवत में किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास और नित्यानंद को बुलाकर क्या कहा? जाओ, सुनो, जाओ घर घर और ये प्रचार करो। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार इन्होंने घर घर जाकर प्रचार शुरू किया। और
उन्होंने किसको प्रचार किया? तो जब वो घर घर जा रहे थे, ये नहीं कि हर घर में उनका स्वागत हुआ। कईयों ने स्वागत किया, कईयों ने अपमान भी किया, कईयों ने ये भी कहा तुम जासूस हो, आए हो हमारे घर में देखने के लिए क्या है, फिर आओगे चोरी करने के लिए। इन्हें कठोर शब्दों का उपयोग किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम प्रचार की सेवा में जुड़ते हैं, जब हम प्रचार की सेवा में जाते हैं, ये नहीं कि हर व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाएगा ग्रंथ लेने के लिए। ये नहीं कि हर व्यक्ति कहेगा हम आपकी राह देख रहे थे। हमारी इच्छा तो ये रहती है कि हर व्यक्ति जिसके पास हम पहुंचे हैं वो कहेगा हम आपकी राह देख रहे थे, बोलो कितने ग्रंथ है। पर आप देखते हो कि कई कहेंगे हमारे घर में बहुत गीता थे। पिछले साल भी आप आए थे ना, पिछले साल भी आप आए थे, बहुत महंगे, कई बहाना देंगे। माया अनेक रूपों से प्रयास करती है हमें भगवान से दूर रखने के लिए। पर अगर भक्त प्रयास करे तो संभव कार्य भी संभव हो जाता है। चैतन्य कृष्णदास कावराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। तो प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि इन ग्रंथों को लोग 10,000 साल तक पढ़ेंगे और उसके पश्चात माया का कितना गहरा प्रभाव होगा कि हम कोई भी व्यक्ति धर्म कार्य में रुचि नहीं लेंगे। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये सबके लिए है। जैसे कृपा चाहिए भगवान की उसके लिए है, क्योंकि बार बार इस विषय पर चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज का उपदेश आप 7वें स्कंद में प्राप्त करते हो। प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो वो माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं इस विषय पर, जब मैं देखता हूं किस प्रकार हम दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे अत्यंत दुख पहुंचता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या कह रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि दुख की स्थिति को सुख में बदला जाए। आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो रंग कर देंगे, आप में कोई कमी है दूर करने का प्रयास करते हैं, पर इन कार्यों के द्वारा असली सुख प्राप्त नहीं होगा। आज आप समाज में देखते हो चिंता, तनाव, निराशा। तो ये जो ग्रंथों की सेवा है ये असली समाज की सेवा है और इसके द्वारा हम प्रभुपाद उस सारे आचार्यों को प्रसन्न कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश था, झाड़े दागो ताय खाओ, जिसे मिलो उसे कृष्ण को उपदेश दो। ये चैतन्य महाप्रभु का भी संदेश है। और हर साल हमारे मंदिर के भक्त हमारे गृहस्थ भक्तों के साथ मिलकर प्रयास करते हैं ग्रंथों को पढ़ने के लिए। तो हमारे ब्रह्मचारी ने तो मैराथन शुरू कर दिया और निवेदन है कि हम सब इस मैराथन में जुड़े। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अगर हम सचमुच प्रयास करेंगे तो भगवान हमें कोई ना कोई साधन देंगे। आखिर इतने सालों से 50 से अधिक सालों से मुक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
ये जो प्रचार की सेवा है, इसके द्वारा हम परम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके द्वारा हम हमारे आचार्यों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। और ये संभव है अगर अच्छी साधना में रखो। अगर हम साधना अच्छी नहीं रखेंगे और ये सोचेंगे अगर हम साधना अच्छी नहीं रखेंगे और ये सोचेंगे कि सफलता प्राप्त होगी, ये गलत है। साधना रखना आवश्यक है। जब आप प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, आपका माया से सामना बढ़ जाता है। जब आप केवल मंदिर में हो तो माया का दर्शन कम होता है। और जब आप प्रचार में जाते हो तो माया का दर्शन बढ़ जाता है कि नहीं? तो आपके लिए क्या है सुरक्षा? आपकी सुरक्षा है अगर आपने अच्छी साधना रखी है। सुबह के समय जाप कीजिए। संकीर्तन भक्तों को जपमाला अपने जाप पहले समाप्त करना चाहिए, प्रचार में जाने से पहले। और आप देखोगे कि अगर आपका साधना अच्छी हो, प्रभुपाद जी ने कहा प्योरिटी इज द ट्रू फोर्स, पवित्रता ही असली शक्ति है। और पवित्रता का मतलब है साधना, जाप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना इत्यादि। तो अगर आप अच्छी साधना रखोगे और प्रयास करोगे तो फिर इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, जो मंदिर के भक्त हैं, जो हमारे क्रिया सब भक्त हैं, कभी मैराथन शुरू हो गया है, आप अगले ये मत सोचो दिसंबर 1 को शुरू करोगे। मैराथन शुरू हो गया है और हम सब अगर इस सेवा में जुड़े तो आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ पाएंगे। असल में माया का मैराथन पूरे साल रहता है, सच है या झूठ? माया का मैराथन सिर्फ दिसंबर 1 को शुरू होता है या गीता जयंती के उपलक्ष्य? माया का मैराथन पूरा साल चलता है, फिर 365 दिन। हम भक्तों का उत्साह भी यही रहना चाहिए कि हम लोगों को ये संदेश दें। तो पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर कितने ग्रंथ बांटे थे? 4 लाख एग्जैक्ट। तो पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर लगभग 4 लाख बड़े ग्रंथ गीता, कृष्ण मुख इत्यादि बांटे थे। और उससे पिछले साल कितना? जब मैराथन शुरू हुआ था, प्रभुपाद ने कहा था डबल इट, मतलब कि अगर एक साल 100 गीता बांटो, अगले साल 200 होना चाहिए। पर अगर हम कहें 4 लाख को डबल इट करो, वो इतना आसान नहीं होगा। तो भक्तों का प्रयास रहना चाहिए, ये साल भी करें। कई बार या कभी कभी लोगों को लगता है इस्कॉन में कुछ ना कुछ मैराथन होते ही रहता है। जन्माष्टमी मैराथन, रथ यात्रा मैराथन। ये एक रूप से भगवान की कृपा है कि हमें सदा सेवा में लगाए रखते हैं, कि माया में गिरने का मौका नहीं मिले। एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, हिंदी में क्या कहते हैं? खाली दिमाग भूत का शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर रहता है। तो हमेशा आप सोचते रहोगे हमने इनका ये प्रयास करना है, ये सेवा करनी है, तो आपका मन जुड़े रहेगा
अच्छे कार्य में। प्रभुपाद जी ने कहा इन ग्रंथों का पढ़ना, बांटना इज इक्वल टू चैंटिंग एंड हियरिंग। ऐसे आप जाप करते हो तो ग्रंथों को बांटना और पढ़ना ये जाप के बराबर है। तो इस साल आप भक्तों का प्रयास रहना चाहिए कि कम से कम आपने जो ग्रंथ पिछले साल बांटे थे उसके बराबर तो करो। ये साल क्या टारगेट है आपका? ये साल भी सेम टारगेट है। आप सब प्रयास करोगे? हमारे भक्ता प्रोग्राम को भी भाव प्रभु के अंडर इन्होंने तो मैराथन शुरू कर दिया है। आप लोग ने 15 दिन में कितनी, हाँ 15 दिन में 9 लाख रुपए की किताबें बांटी। तो ये वृंदावन में मुझे मिले थे और भीमा प्रभु को मैंने बुलाया था। भीमा प्रभु ने कहा वेरी गुड। तो आप ये नहीं कि इससे मंदिर के ब्रह्मचारी मैराथन करके, मंदिर के सारे भक्तों को इस मैराथन में जुड़ जाना चाहिए। जो हमारे मेंबरशिप डिपार्टमेंट के भक्त हैं वो भी सहयोग ले सकते हैं गीतों का आगे बैठने में। एक योजना हम करना चाहते हैं ये साल होटलों में बांटने के लिए। जो होटल हैं हम चाहते हैं कि हर होटल के कमरे में गीता हो। और जब हम होटलों में जाते हैं तो होटल वाले कहते हैं क्रिश्चियन लोग हमें मुफ्त में दे रहे हैं, आप भी मुफ्त में दीजिए। बुद्धिस्ट लोग हमें मुफ्त में दे रहे हैं। अमेरिका में हमारे भक्तों की योजना है हर सारे होटलों में गीता। तो एक बहुत बड़ा जापानीज बिजनेसमैन था बुद्धिस्ट, जिसने अपनी विल में बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ी थी बुद्धिस्ट ग्रंथों को बांटने के लिए। तो वो संस्था सारे होटलों में बुद्ध सिद्धांत ग्रंथों को बांटती है। तो हमारे भक्त बांट रहे हैं होटलों में अमेरिका में, तो वो स्पॉन्सर कराते हैं। तो जो लाइफ मेंबरशिप में हैं वो गीता को स्पॉन्सर करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम होटलों में डालें, जिसके माध्यम से स्कूलों में दें, जिसके माध्यम से अनेक लाइब्रेरीज में दें। तो ये योजना अनलिमिटेड है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो भागवतम के सेट हैं इनको लाइब्रेरीज में डाला जाए, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि प्रभुपाद खुद दिल्ली की प्रसिद्ध लाइब्रेरीज में जाकर अपना फर्स्ट कैंटो रखते थे। जो प्रथम स्कंद प्रभुपाद ने बांटा था 3 भागों में, उनको कई लाइब्रेरीज में जाकर प्रभुपाद जी ने रखा। और प्रभुपाद जी जब पृथ्वी पर थे, इंडिया में हमारी एक लाइब्रेरी पार्टी थी जो कि पूरे भारत में जाती थी लाइब्रेरीज में इन भगवतम सेट्स को रखने के लिए। भक्तिनाथ ठाकुर की जो पुस्तक है जो उन्होंने भेजी थी 1896 में, 1967 तक मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल की लाइब्रेरी में थी। अंदाजा लगाओ 96 आज भी शायद हो। तो आप जब लाइब्रेरीज में डालते हो तो 10, 20, 30, 40, 50 सालों तक लोग इन ग्रंथों को पढ़ सके। तो सब जुड़ेंगे मैराथन में, माताएं भी और मोहन प्रभु तो सब अलग अलग जगह जाकर लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये साल कम से कम पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा तो होना चाहिए। अभी आपका दिल्ली मंदिर वर्ल्ड कंपटीशन में कई साल फर्स्ट आया है। पिछले साल मायापुर आए थे, पिछले साल मायापुर आया था फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, जिसमें
भक्त प्रयास करते हैं राधा प्रसाद की टीम को जिताने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज ट्रांसलेशनल कॉम्पिटिशन, और प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे गोपियों का, उनमें भी ये ट्रांसलेशनल कॉम्पिटिशन रहता है कि हम भगवान की सेवा कैसे बढ़ाएं। तो भौतिक कंपटीशन का अलग भाव रहता है, आध्यात्मिक कंपटीशन होता है भगवान की प्रशंसा के लिए। तो हम सब में देह की भावना अनुकूल होनी चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों के वितरण के लिए। ये हाँ, you wanted to say something? Read it out. ये पत्र तेजस प्रभु दिल्ली मंदिर के प्रेसिडेंट थे 6-7 साल के लिए। पहले हमारा मंदिर था बंगाली मार्केट। लिखो, पढ़ो। Prabhupada's letter to Tejas Prabhu. Now try to tax your brain for finding new ways and better ways for distributing our books widely to the intelligent men of Delhi city. ये लेटर प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है तेजस प्रभु कि दिल्ली के जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ये ग्रंथ हमें बांटनी चाहिए, उनको देना चाहिए। पर कैसे बांटें उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि आप एक गीता लेकर पहुंच जाओगे किसी मंत्री के पास और कैसे बांटना, उसके लिए भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। और अगर आपकी इच्छा है कि आप माध्यम बनो, हम तो निमित्त मात्र बन रहे हैं लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। अगर आपकी इच्छा है कि आप निमित्त मात्र बनो, अच्छी साधना और ग्रंथों का अध्ययन, उससे उत्साह बढ़ेगा। एक समय, ये उदाहरण मैंने पहले भी कई बार दिया है, एक समय हमने बॉम्बे के एक बड़े प्रसिद्ध इंटरनेशनल बुक हाउस में प्रभुपाद जी का बड़ा बुक डिस्प्ले रखा था। ये 1976 की बात है। सब जगह बुक डिस्प्ले, और ये इंटरनेशनल बुक हाउस फ्लोरा फाउंटेन में था बॉम्बे में। पर 1 महीने के बाद हमने देखा कि जितनी पुस्तकों को बिकना चाहिए था उतनी नहीं बिकी। मैं प्रभुपाद जी के पास गया और मैंने कहा कि प्रभुपाद, हालांकि इतना बड़ा डिस्प्ले था, इतनी किताबें हमने नहीं बांटी जितनी होनी चाहिए थी। प्रभुपाद ने कहा मेरे ग्रंथों को लोग लेते हैं भक्तों के उत्साह के कारण, और दुकानों में कोई उत्साहित नहीं होता। तो अगर आप प्रचार में जाओगे इस भावना से, मंदिर के अधिकारी कह रहे हैं जाओ, तो चलो हम हाजिरी लगा कर आ जाएंगे, फिर आप ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं करोगे। आप जाओगे उत्साह के साथ, हंसते हुए, फिर लोग कहेंगे ये देखो ये कितना खुश है, तो फिर वो आपसे प्रभावित होंगे। तो केवल हाजिरी के लिए प्रचार में जाना से काम नहीं बनेगा, उत्साह से हमें जाना चाहिए। मधुसुंदर हियर, मधुसुंदर, हाँ 2 शब्द बोलोगे? तो मैराथन सबके लिए शुरू हो गया है। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है, गुरु महाराज ने बताया कि लोग बोलते हैं हमारे पास ग्रंथ हैं, हाँ, तो उसका एक बहुत सा तोड़ है। ये है, हम लोग जैसे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं We like to welcome Vasa Ghosh Prabhu, President of Baroda Temple, very active preacher, Sanskrit scholar. Want to say a few words to encourage book distribution?
तो लोग बोलते हैं, इससे पहले कि हम लोग जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग ये हरे कृष्णा मंदिर से ग्रंथ दे रहे हैं, इससे पहले कि वो बोले है, आप पहले बोल दो, हमें पता है आपके पास ये है। हाँ। और ये जो है हमारे ग्रंथों की सेवा है, ये हर साल आती है और हर साल हम आपको एक गीता देते हैं। इस साल की एक सेवा है इस्कॉन के लिए, सिर्फ आपको 150 रुपये दान करना है। हाँ? तो उसमें बहुत लोग ले लेते हैं, ये सिर्फ साल में आपको 150 रुपये दान करना है, ये छोटी सी सेवा है, तो काफी लोग इससे ले लेते हैं। और जहाँ तक कि गुरु महाराज ने बोला कि बुद्धि देते हैं, तो हम लोग जाते हैं बुक डिस्कशन में, तो हम लोग देते हैं कि भगवान भी बड़ी हेल्प करते हैं। हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकलते हैं कि हम लोग पहले तैयारी करके नहीं आते हैं, लेकिन लोग ग्रंथ ले लेते हैं और भगवान ऐसे बुद्धि देते हैं। भगवान करें ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ कि कैसे आप ग्रंथ बांटें। तो एक बार हम लोग बुक डिस्कशन कर रहे थे महाराष्ट्र में, अकोला में, अभी रिसेंटली, बहुत जल्दी, थोड़े दिन की बात है। तो एक व्यक्ति आया, तो उन्होंने, आप समझ लो कौन आए, तो एक व्यक्ति आया तो उन्होंने बोला कि यहाँ ये आप क्या कर रहे हो? हम बोले ग्रंथ बांट रहे हैं। तो उन्हें ठीक है क्या दे रहे हो? एक सेट, 100 रुपये का सेट। हमने बोला ये दे रहे हैं। तो 100 रुपये का सेट लिया उसने और लेके चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया, बोले यार बड़ी गलती हो गई, सही बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या हुआ? कह रहे यार मैं ना हमेशा किसी को भी पैसे देता हूँ ना तो उल्टे हाथ से देता हूँ, तो तुम्हें सीधे हाथ से दे गया। बोला यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई फिर तो। कहता है हाँ यार नियम टूट गया यार, क्या करें अब? तो मैंने बोला देखो भाई मंदिर में पैसे चले गए होने तो मुड़ के मिल नहीं सकते। कहता हाँ यार एक बात भी सच्ची यार, मतलब क्या किया जाए? मैंने बोला ऐसा करो आप एक 150 रुपये और दो, एक गीता और ले लो। कहता हाँ यार ये आइडिया अच्छा है यार। मैंने बोला इससे आपका नियम भी नहीं टूटेगा। कहता हाँ यार दे यार, वो एक गीता और ले गया। तो भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे ग्रंथों को बांटा जाए। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद जी महाराज के दिव्य ग्रंथों का वितरण स्पर्धा विदेश में आरंभ हुआ। प्रभुपाद जी महाराज तो वहीं गए थे ना, गोपाल कृष्ण जी महाराज वहीं प्रवेश किया, मैं भी वहीं प्रवेश किया इस्कॉन संस्था में। हम लोग विमान स्थान, क्या विमान अड्डक में बांट रहा था पुस्तक। बाद में यहाँ भारत में गाड़ी लेके घूम रहे थे। गीता का कीमत उसी वक्त 10 रुपया, खाची उसकी जो आवरण, खाची आवरण। मेरा याद है बरसों पहले, कितना अभी 81, कितना वर्ष बीत गया, 37, 10,000 गीता 2 दिन में बांटा, 10 रुपये। गाड़ी में एक जगह खड़ा करके ध्वनि यंत्र के द्वारा प्रचार हो रहा था। अभी संभव है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अनेक प्रकार के तरीका है। मैं आपको क्या बोलूं, आप सब जानते हैं, महाराज तो सब बताया। महाराज एक चीज, यहाँ अरबी पुस्तक हाथ में है, अरेबिक बुक्स, अरबी पुस्तक। प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि जो मुसलमान देशों में मेरे पुस्तक वितरण और जो प्रचार करेंगे, मैं उनके चरणों का धूल मेरे सिर पर रखेंगे। आपने ये सुना है कि नहीं? तो आजकल अरबी लोग हिंदुस्तान में भी आते हैं ना, विद्यार्थी होगा, विद्यार्थी, लेकिन पैसे वाले लोग तो पाश्चात्य देशों में जाते हैं विश्वविद्यालय। लेकिन सोचने की बात है कि दिल्ली में कई विदेशी लोग आते हैं और आप लोग विदेशियों के बीच में कुछ ना कुछ प्रचार करता होगा। अरबी भाषा में भी अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। आजकल कितना बोला था ना प्रभुपाद जी महाराज के तिरुभाव दिन में, सत्यनारायण प्रभु जो महाराज के साथ
बीबीटी के ट्रस्टी मंडल में है। कहीं 2-3 लाख पुस्तक अरबी भाषा में आज तक वितरण हो चुके हैं। ज्यादा अरेबिक लोग अमेरिका में जाते हैं, यूरोप वगैरह, वहाँ उनको बांटते हैं। अरब देशों के अंदर नहीं बांट सकते, अरब लोग जब बाहर जाते हैं उनको बांट सकते हैं। एक और विषय महाराज अगर आज्ञा हो तो वो है श्रीमद् भागवत के पूरे 18 पुस्तकों का वितरण, जो भद्र पूर्णिमा के विषय में चालू किया। लेकिन यही विश्व स्पर्धा, विश्व पुस्तक वितरण स्पर्धा, शूट हिंदी, मेरा प्रयत्न है शूट हिंदी, इंग्लिश क्यों बोलो, सब लोग बोलते हैं। विश्व पुस्तक दिव्य ग्रंथ, दिव्य ग्रंथों का वितरण के विश्व स्पर्धा, और वर्षों वर्षों से भारत ही जीतते जा रहे हैं, और खास करके दिल्ली जीतते जा रहे हैं। तो फिर आप लोग जरा सोचिए, अगर इसी महीने में भी श्रीमद् भागवत के पूरे संकलित ग्रंथों का वितरण अगर कर सकते हो तो और भव्य हो जाएगा आपका वितरित पुस्तकों का संख्या। They're doing it. हाँ? They're doing it. They're doing it. कर रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है। ज्यादा समय मुझे नहीं लेना। Can Dr. Hanuman Das say a few words? Hanuman Das, he's a world leader. जय हो, जय हो, जय हो। हनुमान दास और मोहन रूपा की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। Krishna, I don't know what to say, but yes, this is one activity which makes us feel very happy, which is also very pleasing to Srila Prabhupada, all of our acharyas, and also to Krishna. So I would request all of us that we combine, work hard for the pleasure of Lord. हम लोग प्रयास करेंगे, जैसे महाराज ने बोला है, गुरु महाराज ने अच्छी करें साधना, अपना दिमाग लगाएंगे और तो जरूर कृष्ण भगवान हमको सहयोग करेंगे और उनकी हमको विकेट ऑफ सक्सेस। हरे कृष्ण। तो मैराथन शुरू हो गया है, अगले हफ्ते की राह मत देखना। मोहन भाई want to say a few words? You want to say a few words? तो बस यही है कि आप जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं, महाराज जी हैं, प्रभु जी हैं, वो सब आशीर्वाद दे रहे हैं आप सबको। उस आशीर्वाद को स्वीकार करिए, उसको हृदयंगम करिए और बस आप निकल जाइए। हमारा तो ये स्वधर्म है और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सड़क में है। हम लोग सड़क में जाने के लिए ही बने हैं भक्त। तो ये संकीर्तन आंदोलन सड़क के लिए है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ कम समय बिताइए, सड़क में ज्यादा समय बिताइए। हरे कृष्ण। मैराथन शुरू हो गया है। मायापुर का मैराथन मायापुर मंदिर का 2 महीने पहले शुरू हो गया था। आप लोग मायापुर के पीछे हो। Okay. Anything else? तेरह हजार की तब बढ़ गई है अभी तक। और कोटा कितना है आपका पूरे मंदिर का? 4 लाख ईदा बांटनी है हमने। तो सब प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से आवश्यक सफलता प्राप्त होगी। संपुत्र यज्ञ की, गौर किशोरदास बाबू जी की, गौर प्रेमानंद।